امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد آبنہ ہرمز کے محاذ پر نئی جھڑپ۔ کارگو جہاز پر ڈرون حملے کے دوسرے روز امریکی فوج نے ایران کے جزیرے سریک میں ڈرون اسٹوریج اور ریڈار تنصیبات پر فضائی حملہ کر دیا۔ ایران کا خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بحرین نے ایران پر ڈرون حملے کا الزام لگا دیا، جواب دینے کا حق محفوظ ہونے کا انتباہ۔ ایران نے امریکی حملہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی خلاف ورزی قرار دیا۔ آبنائے ہورموز میں غیر مجاز راستہ اختیار کرنے والے کارگو جہاز پر انتباہی فائرنگ کی گئی تھی۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے مفاہمتی یادداشت کی شق 5 یاد دلا دی۔ ایرانی بحریہ اور فضائیہ نے سریک پر امریکی حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے حملہ آور فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایران کا رد عمل تیز، فیصلہ کن اور ایسے مقام پر ہوگا جس کا انتخاب ایران خود کرے گا، ایرانی افواج نے واضح کر دیا۔ ایران کو مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے طریقہ کار سے اختلاف ہے تو فون پر رابطہ کرے۔ تشدد کا جواب تشدد سے ملے گا، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا سوشل میڈیا پیغام۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے آبنہ ہرمز میں کارگو جہاز کو نشانہ بنانا سیز فائر MOU کی احمقانہ خلاف ورزی قرار دے کر جوابی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ آبنائے ہورمز میں ایک اور کارگو جہاز پر نامعلوم سم سے پروجیکٹائل آ لگا۔ جہاز کے برج کو نقصان، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خلیج عمان میں 3 روز کے دوران دوسرے بحری جہاز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بحری جہاز غیر مجاز راستے اختیار کرنے کا خطرہ مول نہ لے، اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا مشورہ۔ امریکہ نے ایک بار پھر مذاکرات کے دوران حملہ کر دیا، کسی بھی خلاف ورزی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی کا انتباہ، ناکام امریکی صدر نے ثابت کر دیا وہ مذاکرات کے اصولوں کا احترام کرتے ہیں، نہ جنگ بندی کے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ سربراہ ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی کا ایکس پر پیغام۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، تازہ ترین صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے امن کے لیے مثبت کردار جاری رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی امن عمل کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے مسلسل تعاون کی تعریف۔ Today, with Allah's blessings, Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding between the United States and the Islamic Republic of Iran. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران امریکہ معاہدہ پاکستان کے لیے اعزاز قرار دے دیا۔ پاکستان دنیا میں پیس میکر بن کر ابھرا، ایرانی صدر کے دورے سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ شہباز شریف کا امن معاہدے کے لیے انتھک کوششوں پر فیلڈ مارشل کو ایک بار پھر خراج تحسین۔ ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا ہے، معرکہ حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا۔ PSNS رہبر کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین میں وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم 2 جولائی کو شام تہران پہنچیں گے۔ خامنائی کی تدفین 3 جولائی کو ہوگی۔ شہباز شریف 4 جولائی کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کریں گے۔ لبنان اسرائیل جنگ بندی فریم ورک معاہدے کے خلاف لبنان میں مظاہرے پھوٹ پڑے، پولیس سے جھڑپیں، مشتعل مظاہرین نے املاک کو آگ لگا دی۔ بیروت میں سرکاری اہلکاروں کی مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کی فوٹیج سامنے آ گئی۔
हिजबुल्लाह ने अमरीका, इसराइल और लेबनान जंग बंदी फ्रेमवर्क मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन में तय पाने वाला मुआहिदा जिल्लत आमेज, शर्मनाक और लेबनान के खुद मुख्तारी से दस्तबरदारी के मुतरादिफ करार। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम ने मज़ाहमती तंजीम को गैर मुसल्लह करने की शर्त सख्ती से रद्द कर दी। वाशिंगटन मुआहिदे की बजाय अमरीका ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर अमल दरामद का मुतालबा। वाशिंगटन में 5 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी फ्रेमवर्क पर दस्तखत। अमरीका की लेबनान के कुछ इलाकों से इसराइली इनखला की तजवीज़। लेबनानी नुमाइंदे का इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला पर इसरार। इसराइल ने जनूबी लेबनान से इनखला के लिए हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की शर्त रख दी। मुआहिदे के तहत जनूबी इलाकों में फ़ौजें रखना कानूनी करार दे दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी खाम तेल $2.69 सस्ता हो गया। नई कीमत $69 फी बैरल तक गिर गई। बरतानवी तेल की कीमत में $3 से जायद की कमी $71.99 फी बैरल हो गई। इसी तरह अमाराती तेल मर्बन क्रूड $2.5 सस्ता होकर $66.55 का हो गया। आलमी मंडी में कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ताहुक्म सानी बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में ₹6.57 और पेट्रोल पर 39 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल पर लेवी बरकरार रहेगी। कीमत में ₹6.85 फी लीटर कमी। शहरियों का आलमी मार्केट में कीमतों में कमी का रिलीफ देने का मुतालबा। महीने के अंदर अंदर जो है तकरीबन $30 तक, बल्कि शायद $35 तक कम हुआ है। और लास्ट नाइट जब मैंने देखा तो वो तकरीबन कोई $69 पर बैरल था। पेट्रोल की जो कीमत है वो हुकूमत वक्त को चाहिए कि ये कम करें, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन गिर रही है। की भी बचत करें ना, और इस रेट को कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि 250 या 200 तक ना। लोग खाम तेल नहीं, पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं। आलमी मंदी की कीमत ऑयल रिफाइनरीज के लिए होती है। हुकूमत ने अब तक हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹200 और पेट्रोल के नर्ख ₹155 फी लीटर कम किए हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। हुकूमत की इक्तिसादी इस्लाहात से कर्ज का दबाव कम और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। हुकूमती कर्जों की शरह नमो गुज़िश्ता 15 बरस की कम तरीन सतह पर आ गए। कर्ज का GDP से तनासुब 76 से कम होकर 68% पर आ गया। स्टेट बैंक के ताज़ा तरीन एदाद शुमार जारी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहर ज़लज़ले से लरज़ उठे। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, पेशावर, एबटाबाद और स्वात समेत कई शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 और ज़ेरे ज़मी गहराई 178 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोह हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान में था। यूरोपीय कोह पैमा मरकज़ ने ज़लज़ले की शिद्दत 6 करार दी थी। पेशावर में ज़लज़ले से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी लरज़ उठी। स्पीकर ने इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 6 के करीब शदीद फायरिंग और धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार वाक़े की जगह पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला थम गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खारान और मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 25 और 26 जून को किए गए। मस्तूंग में मुमकिना खुदकुश हमला आवर की मौजूदगी पर पेशगी इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में एक खुदकुश हमला आवर समेत 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। खारान में फितनतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। धमाका खेज मवाद, गोला बारूद, असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं।
सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध और नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान की सिक्योरिटी एहलकारों को शाबाश। कामयाब ऑपरेशन को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना महारत और आज़म का मजहर करार दिया। फितनल हिंदुस्तान समेत हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रखने के आज़म का आदा। दो टोक पैगाम दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने सिक्योरिटी गार्ड को असेंबली बुलाने पर माजरत कर ली। गुज़िश्ता रोज़ स्टाफ से झगड़ा करने पर तहरीक इंसाफ के कारकुन पर असेंबली में दाखिले पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना अपनी गलती तस्लीम कर लिया। कायदे अवान ने जो काम किया ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर का इजहार बरहमी। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने कहा कि एडवांस पेमेंट करने पर BRT के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल किया गया। बहुत आसान था कि BRT मंसूबा ना बनाते। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। अंदरून सिंध सूबाई हुकूमत की बनाई हुई सड़कें वफाकी ज़ेरे इंतजाम नेशनल हाईवे से बेहतर करार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं कि कच्चे के इलाके नोगो एरिया बने हुए थे, लेकिन पुलिस ने इलाके क्लियर करा दिए। सिंध असेंबली में कहा कि उन इलाकों में हमें सेहत और तालीम की सहूलतें और इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। सुनने और देखने की सलाहियत से महरूम अफराद की सरपरस्ती और हौसला अफजाई इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हिम्मत कार्ड के जरिए डेफ, ब्लाइंड समेत तमाम स्पेशली एबल्ड अफराद की बाइज्जत मुआशी मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का डेफ ब्लाइंडनेस डे पर पैगाम। क्वेटा में एयरपोर्ट रोड पर फायरिंग से रेस्टोरेंट का मालिक जाँ बहक। वाक़ये के खिलाफ लवाहिकीन और ताजरों का शदीद एहतजाज। क्वेटा चमन शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गए। वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने वाक़ये का नोटिस ले लिया। मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। क्वेटा में फायरिंग से रेस्टोरेंट का मालिक जाँ बहक, ताजरों का एहतजाज। बलोचिस्तान के शहर दश्त में गाड़ी पर फायरिंग। कराची का शहरी जाँ बहक, बीवी जख्मी, 2 बच्चियां महफूज रहीं। कराची से क्वेटा जाते हुए खानदान रास्ता भटक कर दश्त पहुंच गया था। ओकाड़ा के कस्बा जंदराका में घर से 3 बच्चों और खातून की लाश मिली। जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। जाँ बहक होने वालों में 42 साला खातून, 7 साला 2 जुड़वा भाई और 10 साला बच्ची शामिल। लाहौर में मदरसे के उस्ताद का मुबैना तशद्दुद। बहावन नगर का 12 साला बच्चा 8 रोज के बाद जिंदगी की बासी हार गया। कारी के तशद्दुद से बच्चे के हाथों और टांगों की हड्डियां टूट गई थीं। अहले खाना बहावन नगर में इलाज करवाते रहे। इंतकाल के बाद पुलिस को मुत्तला किया। पुलिस ने बच्चे की तदफीन रुकवा कर मैयत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। वालिद की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके सरजानी टाउन में 18 साला मिसबा की मौत के केस में पेशरफ्त। अदालत के हुक्म पर पुलिस सर्जन कराची की सरबराही में मकतूला मिसबा की कबर कुशाई। सिविल जज और जुडिशल मजिस्ट्रेट वेस्ट भी मौजूद। कबर कुशाई के बाद मेडिकल मुआयने और शवाहिद हासिल किए जाएंगे। मकतूला मिसबा के अहले खाना ने शोहर पर मुबैना तशद्दुद के संगीन इल्जामात आयद किए थे। खातून से ज्यादती के मुकदमे में 25 साल कैद की सजा पाने वाले मुलजिम लाहौर हाई कोर्ट से बरी। ज्यादती साबित ना हो तो मुकदमा नाजायज जिनसी ताल्लुकात में तब्दील करके मुलजिम की सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती। FIR में रेप का सेक्शन लगा है तो सजा के लिए उसी सेक्शन को साबित भी करना होगा। जस्टिस अमजद रफीक ने फैसला जारी कर दिया। मुलजिम के खिलाफ 2010 में मुजफ्फरगढ़ में ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया था। PNS रहबर कराची में पुरवकार पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में बहरीन, इराक और जबूती के मिडशिपमैन भी शामिल। ऑफिसर कैडेट हाफिज मोहम्मद अहमद मुनव्वर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस गोल्ड मेडल से नवाजा गया। उमर मुख्तार के लिए एजाजी शमशीर। शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की ऑफिसर कैडेट अलवीरा हमजा के लिए कमांडेंट गोल्ड मेडल का एजाज। अकेडमी मिडशिपमैन का एजाज हादी अब्बास खान के हिस्से में आया। वजीर आजम ने परेड का मुआयना किया। तकरीब में अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ,
गवर्नर और वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर इत्तलात समेत आला हुकाम की शिरकत। मेरा नाम महताब अहमद है। मुझे अब्दुल्ला यूनुस ने कहा की थी कि मुख्तलिफ लोगों से पैसे इकट्ठे करके तो क्या करना है कि धरने में जाकर रौला पोड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने पैसे इकट्ठे किए करके जा रहा था तो रास्ते में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। कालादम एक्शन कमेटी की हकीकत खुलकर सामने आने लगी। इंतशारी कमेटी की जानिब से धमकाकर रकूम लेने और बैरून मुल्क से भी पैसे मंगवाने का इंकशाफ। कमेटी के नेटवर्क ने रावला कोट धरने के लिए काम किया। पुलिस ने कालादम कमेटी के मालियाती नेटवर्क के अफराद को गिरफ्तार किया। इंतशारी कमेटी के गिरफ्तार सहूलतकार का फंड इकट्ठा करने का एतराफ। मुल्क के बालाई इलाकों में बढ़ती गर्मी से ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार बढ़ गई। गिलगित के दयामर थोर गांव में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर, वाटर चैनल्स और सड़कें मुतासरीन को खैमे और दीगर ज़रूरी सामान पहुंचा दिया गया। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में ग्लेशियाई झीलें फटने का अलर्ट जारी कर दिया। वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही के बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन। अमवात की तादाद 920 तक जा पहुंची। 4,500 से ज़ायद अफराद जख्मी। सैकड़ों अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक की इमदादी टीम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। यूरोप में जून के महीने में गर्मी के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। सिर्फ स्पेन में 21 जून से अब तक 327 अफराद हलाक। फ्रांस और बरतानिया में दर्जा हरारत अपनी बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। रूस का यूक्रेन पर हमला, 3 अफराद हलाक। सरकारी तवानाई कंपनी पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बरसात, तनसीबात को नुकसान पहुंचा। प्लांट पर पैदावार का काम रोक दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट के डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स सीजन 2026-27 का ऐलान कर दिया। सीजन का आगाज अगस्त से होगा। डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स सितंबर से शुरू होंगे। डिपार्टमेंटल टीमों की सालाना फीस में इजाफा। ग्रेड 1 की फीस 1.5 करोड़ रुपए मुकर्रर। खिलाड़ियों के माहाना मुआवजे की भी कम अज कम हद मुकर्रर कर दी गई। मुतनाज़ ऑफसाइड और गोल जाया। ईरान मिस्र के खिलाफ मैच जीतते रह गया। मिस्र के साथ मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। किसी भी कीमत पर अपने अवाम को खुशियां देना चाहते थे। ईरानी कप्तान अब दीदा हो गए। मिस्री टीम पहली बार नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई। काहिरा की सड़कों पर फैंस उमड़ आए। फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में पहुंच गया। उस्मान दम्बेले ने शानदार हैट्रिक करते हुए नॉर्वे की डिफेंस लाइन तहस नहस कर डाली। पेरिस से अमेरिका तक फ्रांसीसी शायकीन का जश्न। T20 वर्ल्ड कप में 4 शिकस्तों के बाद कौमी वुमेन टीम की पहली कामयाबी। नीदरलैंड्स को 37 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने 126 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स 89 रन पर ढेर। T20 की चैंपियन टीम घर से बाहर निकलते ही ढेर। आयरलैंड ने भी ना जीत सकी। पहले T20 मैच में आयरलैंड ने इंडिया को 34 रन से शिकस्त दे दी।